society, in the nation, in the community, and all the entrepreneurs who all are managing the institutions in the school, college, university. So we have to also increase to our student, rather than traditional 3-year, 4-year, 5-year, 6-year education. Yes, required, but not for everyone. So there should be some ratio analysis, the 40%, 30% students who route through the vocational education, short-term education, and the higher education. So this is the need of the hours, and I believe this is everyone's responsibility. And this is a very good initiative, and ICSI, they are dedicated officials and the team members, and I must appreciate that giving me an opportunity to invited here to say about something, and I really respect all the delegates and all the honorable guests and the participants who all are in the hall. So thank you very much. Thank you. जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद है आपने ख़ास तौर पर। और जिस प्रकार से आप लगातार कार्यक्रम करते हैं और मोटिवेट करते हैं, दीपक झा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। ख़ास तौर पर अब हम आगे बढ़ रही हैं और इसमें कई डिफरेंट फील्ड के लोग भी हैं, लेकिन हम बात कर रहे थे अक्षय पात्र की और हमारे बीच में हैं, तो हम चाहेंगे गोविंदा दाता दास जी से, आप मेंबर हैं नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल द अक्षय पात्र फाउंडेशन के, आपसे आग्रह है कि आप आएँ। अक्षय पात्र के बारे में तो बताएं ही, लेकिन कितना कुछ महत्व है असंस्कार के साथ शिक्षा का, इस पर भी आप निश्चित तौर पर बताएं। गोविंदा दादा। Thank you all for inviting Akshay Patra for this wonderful program. Honorable panelists on the dais and dear friends. As many of you might know, Akshay Patra Foundation was started in year 2000 from Bangalore. Basically, it's an initiative to feed or execute the PM Poshan program, midday meals, across government schools in the country. And in the year 2000, we started with 1,500 students in Bangalore. And right now, across 16 states and 2 union territories, Akshay Patra has got 75 centralized kitchens, and we serve every day 22.5 lakh children across 23,000 schools in the country. The vision of Akshay Patra is food for education. Nobody should be, no child should be deprived of education because of hunger. That is the mission. So, food is fundamental for our material and spiritual growth according to the Indian tradition, according to the Vedic tradition. In the Vedas, we read that आहार शुद्धे सत्व शुद्धि सत्व शुद्धे ध्रुवा स्मृति स्मृतिर्लब्ध्वा सर्वतो ग्रंथीनां विप्रमोक्षः. When you have shuddha ahar means food. When you have shuddha ahar, sattvic intelligence will develop. Sattvic intelligence is the mode of goodness will develop. And sattva shuddhe dhruva smriti, higher memory, higher brilliance will get revealed by increasing sattva guna in your personality. And smriti ladva sarvato grandhinam vipramoksha. That which is prevailing us from real freedom, real growth is something called grandhi. Grandhi means a knot, bondage, limitations. All sorts of grandhis, all sorts of knots can be opened up if we get sattva shuddhi, and it leads to emancipation, moksha, perfection, liberation. So it all begins with food, ahara shuddhi. In the West they say, you are what you eat. So understanding these principles, our founder, His Divine Grace Srila Prabhupada, the founder of the worldwide Hare Krishna movement, he inspired us to start this Akshay Patra program, and by God's grace and with the support of the governments,
national union government as well as the state governments, and many industrialists. This program is growing, and we have one golden recipe which we follow in Akshay Patra. I'm sure many of you might also be following this. When 5,000 years back, in the very same place, that time this place was called as Indraprasth, Maharaj Yudhishthir decided to perform Rajsu Yajna. He was advised by Narad Muni. Okay, you have established the city of Indraprasth. Now, for becoming a monarch, further growth, you perform Rajsu Yajna. And the problem was there was no money. Because practically, Pandavas were victims of politics. They were the heirs of Hastinapur, but they were casted away from Hastinapur. They were brought to this place. That time, the entire place was jungle and no human settlement here. But with the help of Krishna and Balaram, they converted this place into a beautiful city. And then it was advised to Yudhishthira, you perform Rajsu Yajna, but which needs huge amount of resources, and there is no money. And Yudhishthira, as we all know, is a very dharmic person, soft-hearted. He was confused. क्या करेंगे? कैसे मिलेगा पैसा? कैसे ये सब organize करेंगे? दुनिया के राजे महाराजे को invite करना है. And it was not just limited to India. The Mahabharata says even the kings of Rome, Romakhan, Varushadakhan, they all came to participate in the Rajsu Yajna of Yudhishthira Maharaj later on. So then, what is the way ahead? How to achieve this big task? Then, Bhimasena, the second brother of Yudhishthira, he gives a solution. We call Bhima as Bhimasena. You must have heard the name Bhimasena. We don't call Arjuna as Arjuna Sena or Nakula as Nakul Sena or Yudhishthira as Yudhishthira Sena. Bhima is only Bhima is called as Bhimasena. You know why? Because Sena means Saha Ina Iti Sena. Ina means God, Krishna. Ina is the name for God. Saha Ina, a person who is always with God is called Sena. Bhima Sena, because his consciousness was always fixed on God. He's actually the reincarnation of Lord Hanuman. So always fixed in God consciousness, he was very powerful spiritually, mentally, intellectually, as well as physically. So Bhimasena said, I have a recipe for this problem. I have a solution for your problem. You don't have confidence, you don't have money, you're confused, no problem. A very simple formula. 3 items we need. And he gives a beautiful shloka in Mahabharata, this is there. Nijanubhava varjita, mahaprayatna varjita, hare anugrah bhojita, janana jatmu unnati. If you want growth, unnati means growth, not success. Success and failure comes and goes. The aim of Sanatana civilization, Sanatana Dharma civilization is not just success, it is growth, purposeful growth. And the real growth begins after liberation. But still then we have to grow. Growth is always our motive. So for unnati, for growth, you need 3 factors. I'm just sharing. It's not something invented by me or my revelation. No, it's from the rishis. Vedavyasa reveals this through the mouth of Bhima. And he says, number 1, if you want unnati, nija anubhava varjita, janana jagmur unnati. People who reject their true experience, they will not get growth. Number 1, cherish your own true experience. Learn from your experience. Always be thoughtfully active. Always learn. Look around you. What is happening with you? What happened with your predecessors? What happened with your superiors, your parents? Their experience never remind you that. Always value and cherish true experience. Nija anubhav. Anubhav means experience. Nijanubhav. Never give up that. Work, plan on the basis of your true experience. Nijanubhava varjita. Number 1. Number 2, he says, mahaprayatna varjita. Never give up.
great effort, not just hard work or smart work. Hard work and smart work is included in this terminology called Mahaprayatna. Mahaprayatna, we add the prefix Maha when there is something divine involved in it, when there is something great involved in it. One name of God in Vishnu Sahasranam is Maha. It's actually divine connection. Your prayatna, your effort should be God-centered, God-connected. Accept the existence of the divinity, the Supreme. And then based on that consciousness, you put your great, hard and smart effort. Mahaprayatna, never be laid back, never be lethargic. The same thing Krishna told Arjuna. Vigadajvara yuddhasya kritadishaya. Give up your lethargy and get ready for the fight. So, Mahaprayatna. And third thing he says, Hare Anugraha, the Anugraha of Hari, the blessing of God. We call God Hari because Hari means, in one sense, thief. Haran karne wala. The Acharya says, Aneka janma Chauragraganyam Purusham Namami. He usurps the papa, the sinful reactions we accumulated across many, many lifetimes. So he is a real deliverer. Accept the reality, whether we like it or not, that's the truth. We have a prime minister. Many people like the prime minister. Many people dislike the prime minister. But whether it is dislike or like him, doesn't matter. We have to accept the reality that he is the prime minister. Similarly, the Vedas say, whether you like it or not, the reality is there is the supreme absolute truth, the supreme controller of everything. So always be conscious of that. Krishna says, give up your doership. Only a foolish person thinks that I am the doer. Because of me, we achieve this. Because of my intelligence, my hard work, my effort, we achieve this. No, keep this aside. You might have done a chesta, a small percentage in achieving that. But beyond you, there is something called Prakriti, the material nature. Your body belongs to Prakriti, your mind belongs to Prakriti, your intelligence belongs to Prakriti. We achieve things by the help of Prakriti. So, don't be foolish by claiming doership on yourself. Give up doership for the sake of work, for the sake of performing duty, for perpetual growth. Be conscious of me and perform your duty. Mam anusmara yudhyacha. So this 3-pointed golden recipe, Bhimasena gave, and I happened to hear the same shloka chanted by one ISRO scientist after the Chandrayaan-3 success. He was sharing the same thing, he got the same shloka. He was saying, ISRO is following the same recipe. Nijanubhava varjita, Mahaprayatna varjita, Hare Anugraha varjita, Janana Janmarunnati. We need progress, perpetual growth, 3 things. Always cherish and learn from your true experience. Number 2, always put great effort, Mahaprayatna, never be lethargic, and always accept, work in a consciousness of God, and so that God's blessing comes and all perfection and success and growth we achieve. Thank you very much. All the best for all of you. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप ऐसे वचन निश्चित तौर पर हमारे लोगों को मोटिवेट करेगा। यहाँ दोस्तों हम आपको बता दें कि हमारे बीच में सांसद लवली आनंद बस कुछ ही पलों में आने वाले हैं, 12 बजे के आसपास हम आएंगे। हमारे इस कार्यक्रम में निश्चित तौर पर भाग लेने के लिए आ रहे हैं। यहाँ वो बिहार में थी, लेकिन जब उन्हें कहा गया लेकिन नहीं, हम आएंगे और हम एजुकेशन पर और बिजनेस पर बच्चों को और खास तौर पर अपने फैकल्टीज और उनको मोटिवेट करने के लिए हमारे बीच में वो होंगे। यहाँ दोस्तों हम आपको बता दें कि हमारे ये कार्यक्रम अभी 4 सेशन में रखा है, जिसमें पहला सेशन में आप लोग खास तौर पर उपस्थित हैं और इसके अलावा हमारे बीच में एजुकेशन के साथ साथ बिजनेस के कई लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर अपने वक्तव्य देंगे, अपने विचार भी रखेंगे। बिहार से भी आए हुए हैं, बिजनेस के काफ़ी लोग हैं और उसमें स्पीच गियर सर हम ये खास बताना चाह रहे हैं। स्पीच गियर जो आप देख रहे होंगे स्टॉल भी है यहाँ पर, उसके हेड यहाँ आए हुए हैं भरभूषण जी। उनका कहना था कि डिसेबल बच्चों के लिए वो काम करते हैं। हायर एजुकेशन में शायद उन्हें
जगह नहीं मिलती है अगर वो पास करके हाई स्कूल से जाते हैं और आपके पास तो एडमिशंस में प्रॉब्लम होता है। हम कुमार सेक्रेटरी सर से इस पर फोकस करें। हम एक उदाहरण बता रहे हैं आपको। एक बच्चा था, उसे प्रशस्ति पत्र मिला था, खास तौर से एजुकेशन मिनिस्टर स्मृति ईरानी ने जिन्होंने दिया था। वो बच्चा पूरी तरह से नहीं देख सकता था, मस्कट में था, वो हाई क्लास नंबर लाया था, और जब उसके बाद सिम्बोसिस में कंप्लीट कर गया, उसकी एडमिशन नहीं हो रहे थे कि हमें कोई भी हमने व्यवस्था नहीं की है कि इस बच्चे को कैसे एजुकेशन दे। तो उस बच्चे ने अपना आगे बढ़ के बोला कि हम प्रशस्ति पत्र गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिटर्न करने जा रहे हैं, और इसके बाद सिम्बोसिस ने उसका एडमिशन लिया और वो बच्चा फिर से 90+ % से ऊपर लेके पास हुआ है, और अभी उसका प्लेसमेंट हुआ है सर, खास तौर से एविएशन मिनिस्टर में उसका प्लेसमेंट हुआ है। जोरदार ताली से उस मृणाल बच्चे के लिए एक बार आप ऐसे बच्चों को खास तौर पर हम भी काम करने वाले हैं, और उस पर डिसेबल पर और स्पीच गियर इस पर खास तौर से हमारे बीच में काम कर रहा है। हम चाहेंगे कि ऐसे जो भी काम कर रहे हैं हम उन्हें आगे बढ़ाएं। सॉफ्टवेयर में देख रहे होंगे आपके साथ एक स्टॉल है मिनाकल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, ये भी लगातार मोटिवेट करता है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। खास तौर से प्रीमियम वर्ल्ड जिसके करीब 22 वेबसाइट्स हैं और मैगजीन्स हैं, और उनकी मैगजीन्स का आज यहाँ पर विमोचन भी होगा, तो हम उनका भी स्वागत करते हैं। इसके अलावा हमारे साथ भोपाल से भी IAS यूनिवर्सिटी के कई लोग आए हुए हैं। शायद सबको आने में भी देर हो रही है, लेकिन हम सभी का वैसे लोगों का स्वागत करते हैं। और निश्चित तौर पर हम चाहेंगे कि ऐसे कोई भी आए तो उनका यहाँ स्वागत हो। हमारे साथ खास तौर से रुचि मैम है, हम चाहेंगे कि आप आए, अपने विचार रखें, जिन्होंने क्या कुछ कर रहा है, अपने कॉलेज क्या कर रहा है, और क्या कुछ एजुकेशन से होना चाहिए, इस पर खास तौर पर अपनी बात करें। Thank you, sir. A very good morning to one and all present here. Especially very good morning to all the dignitaries on the dais. Well, today I am representing JNID Institute of Management Studies, Greater Noida, at this event. Well, talking about the education, we all are aware that these days digital transformation is the center of anything that we are doing, whether it is the corporate houses, whether it's a startup, or whether it is an education system. So similarly, same is applicable to the education system also. It is vital that we teach digital transformation to the students, and not only to the students but also to the faculty members. And digital should be, analytics, digital, this should be embedded in the curriculum, and that's exactly what we are doing in GIMS. Because it's a PGDM program, so we have the liberty to curate our own curriculum. And what we have done is we have embedded analytics in every domain, be it HR, marketing, finance, because we all understand, that AI is the future. And yes, of course, it will be something which will be the integral part of education system as well, and for us also. Likewise, that is one thing which we have done in our curriculum, and apart from that, we are also training our students and faculties in a similar manner. Recently, we have collaborated with Coursera. Of course, it's a very popular online media of upgrading yourself, upskilling yourself, and whether it is the faculty or the people in the corporates and everyone, if you want to be, you need to be agile. So everybody needs to upskill themselves, and that is why this collaboration will empower our students as well as the faculty members to upskill themselves in every field. We are offering 37 certifications to the students on Coursera. So in a similar manner, international exposure, international immersion programs should be part of the curriculum, and that is exactly we are also doing at GIMS. This year also we took the students to Malaysia. We had a collaboration with Mahasa University, for which our students, they completed 3 certifications from the university in Malaysia. And last year we took the students to Dubai, the Montfort University. Again, they did 3 certifications from there. And similarly, we give the opportunity to the faculties also. They also deliver the sessions to the students wherever we are going for the international program. So this kind of reach and this kind of exposure is very much required for any institution, and of course
AI, or when we talk about digital transformation, that is something which nobody can escape from. So it is the need of the hour that everybody not only upskill themselves, but the time is about reskilling also, and that is what we believe in, and that is what I believe in. And yeah, that's all from my side. Thank you very much. बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद मैम। जी हाँ दोस्तों, हमारे बीच में खासतौर से तीनों इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ के आप स्कूली डायरेक्टर हैं, डॉक्टर रुचि जया, जो आपने विचार रखे। जहाँ दोस्तों हमारा ये कार्यक्रम अभी चलेगा, लेकिन हम आपको बता दें कि सांसद लवली आनंद और रामप्रीत मंडल, झंझारपुर सांसद, वो भी लंच के बाद आएंगे। लेकिन हमारे बीच में कुमार शेखर विजन सर हैं, आपको कौन रहे हैं, और चांसलर हैं सोमनाथ यूनिवर्सिटी से, और आपको भी निकलना है, लेकिन हम आपसे आग्रह करेंगे कि अपने विचार हमें अवश्य बताएं और यहाँ पर अपनी बात रखें। डॉक्टर कुमार शेखर विजन सर। Namaskar. First of all, I congratulate ICCI for daring to organize a very relevant, important, full-day seminar on a working day in Delhi. I must congratulate because when I reached at 9:56, the program was already on. It is very rare. My compliments to the president of ICCI as well as to dear Manvendra. It was overdue to come to this particular program for me because many times in past it happened that wonderful programs were organized by Manvendra, but I was not able to join them. When we are talking about academia and industry, since long we all are talking about it. Maybe when education started, when we started giving education, from that time, we all are thinking where it will be applied, where the application of this knowledge will be there. I was seeing that today in the inaugural session, there were two important people around. Honorable Minister, who himself is a physician, a doctor, and later on, Mr. Dasa was there from Akshapatra. When we look at a doctor, it speaks about the importance. What is, we all are talking about that why industry academia interface is needed, because application is very important. In medical profession, we have internships, what we are talking now in otherwise. We have practical exposure from day one, which we are talking now in otherwise in other areas. And the same thing, what is happening in medical, what is happening in some such areas needs to be applied by all of us religious. When Mr. Govind Dasa was speaking, he said one very beautiful thing, Yatha Ahar Tatha Vichar. His words were different, but the meaning was same. And when we take Ahar, if it is not processed properly, then it creates indigestion. In education also the same thing is happening. A lot of information in the name of knowledge, in the name of course curriculum, in the name of other things around, is given, fed to the students every day. But we do not talk about, we are not concerned about that it needs to be processed properly. So that one, it is digested, two, it becomes useful. And this is what academia and industry has to do together. I'm not going on all those points, what throughout the day people will be speaking about, what we should do, there should be internships, course curriculum should be aligned, we should work with them very closely, all those things, I'm sure that throughout the day, it will be discussed deeply. But in our body also, I am very repetitive on this particular thing. On many platforms I speak on that.
that as in our body there are three important things: head, heart, and hand. The same thing is required in education also. What we are trying to do, we are feeding our head every day in the classrooms and otherwise. One, we are not processing it properly, that how to apply it to become good human being. And application part, we are not using in hand. That process has to be there. And once that process will be there, the problem what we are having, that we are creating a product without knowing where, how it will be used. Industry is expecting a product which is very useful, but without telling what they need. We need to have a relationship. I always say that with industry, academia, the relation is very inorganic in nature. It's not organic. We meet each other very rarely. We meet very specifically. We do not meet naturally. However, it has to be a very natural process of every day. Because what we are doing for each other. Without academic institutions, industry cannot survive. Without industry, the product of academic institution is not needed. So, एक सगाई करने की जरूरत है, ऑर्गेनिक सी सगाई, और जब उस सगाई के बारे में हम जान जाएंगे, तो चीजें बदल जाएंगी. I am thankful to everybody again, and as Manvendra specifically mentioned about special children, I would like to mention Manvendra, I think he is here somewhere. First, I congratulate speech givers that you are doing a good job, and everybody should think about it. Yes, in educational institutions, these challenges are there, that we do not have the capacity to address the needs of Devang. But we all have to take initiative. At Shobit University, Meerut, we are working in that direction. There is a school called Vani, and all the kids of that particular school are not only welcome in the university, but we work with them very closely to empower them. And I am sure with more than 1,000 universities, 50,000 higher education institutions, we can bring a transformation, we can bring a change in that particular area also. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद सर. हमें पता है आपको आज पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ समय है, और इसीलिए आपने फिर भी आप हमारे इस कार्यक्रम के लिए समय निकाला है. आपने कहा कि आप सुबह में बता देना, ये शाम में बता देना, और आप निश्चित समय पर आ गए. ये हमारे लिए बड़ी बात है, क्योंकि जिस प्रकार से हमने ये शुरुआत की है, और शुरुआत से ही आपका सहयोग रहा है. जब हम इसे ट्रस्ट में चलाते थे, अब हम एक कंपनी पर हैं और हम लगातार कार्यक्रम करने वाले हैं. इसके बाद हमने मंत्री जी से आग्रह दे दिया है, डॉक्टर्स पर कॉन्क्लेव करने वाले हैं. 20 तारीख को मेरिडी होटल में ही हमारा एक कार्यक्रम है, उसमें फील्ड फाइंडर हमारा सहयोगी है. और इसके बाद 24 जनवरी को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में फुल डे एजुकेशन कॉन्क्लेव है, जिसमें डॉक्टर कैलाश जी के पिताजी स्वतंत्रता संग्राम के पहले वो रहे, उनका 125वीं जयंती है, उस पर भी हम विशेष कार्यक्रम करेंगे. हम आपको उनके बारे में बता देंगे. श्याम नारायण सिंह बिहार के वैसे लीडर थे जिन्होंने वहाँ पर जब भाषण दिया था, उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम में वो सब मुकाबला आ गया था, और सिंह गर्जना कहा जाता है. डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह गर्जना कहे थे उनके भाषण को. हालांकि सब समझते हैं डॉक्टर कृष्ण सिंह भाषण दिए थे, लेकिन वो भाषण इनके पिताजी श्याम नारायण सिंह जी ने दिया था. इसके पहले भी सांप्रदायिकता पर वहाँ पर दंगा कर गया था. इन्होंने 6000 लोगों को एक बगीचे में पूरी तरह से घेर कर 2 दिनों तक रखे, क्योंकि उसमें कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था थाने में. और जब उन्होंने कम्युनिकेट किया, उसके बाद बिहार शरीफ थाने में जाकर लोगों को बचाया गया. तो श्याम नारायण सिंह पर हम विशेष कार्यक्रम 24 जनवरी को करेंगे. हम चाहेंगे कि आप हमारे सारे कार्यक्रमों में आए. और देखिए हमारे बीच में डॉक्टर निगम चतुर्वेदी सर आए हुए हैं. आप सेविजी कॉलेज के डीन, आपका सर बहुत बहुत स्वागत है. अमित भारद्वाज से आग्रह है कि कुमार शेखर विजय सर का लगभग टोकन देने के लिए सर को जाना है. आपको फाउंडर हैं, चांसलर हैं शोभित यूनिवर्सिटी. हमारे मेट्रो दरअसल ऑन द वे है, लेकिन हम आपका लगभग टोकन सर देना चाह रहे हैं. बिल्कुल सर, आप देखिए आपने कर लें. जी जी ये और अमित भारद्वाज जी हैं, आप सुंदरदीप में हैं, प्रेसिडेंट फेल हैं, और कई जगह आप लगातार मोटिवेट करते रहते हैं हमारे इस कार्यक्रम को. और हमने वाइस प्रेसिडेंट भी हैं हमारे इस ICC में आपने आया है.
देखिए हमारे बीच में बिहार से खास तौर पर बेगूसराय ग्रीन हब प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर सुमित महाजन जी हैं। आप 200 करोड़ कंपनी अभी है आपकी, नेक्स्ट टारगेट है 300 करोड़ का, और बेगूसराय ग्रीन पर काम करके आप आगे बढ़ना एक अति महत्वपूर्ण है। हम आपसे आग्रह करेंगे सुमित महाजन जी, आप अपनी बात रखें, आप बताएं कैसे किस प्रकार से आप अपने खास तौर से अपने इस बिजनेस को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमारा एजुकेशन और बिजनेस मिक्स कार्यक्रम है। आप आए कुबर सिंह सर को जाना है और पूर्व राष्ट्रपति से मिलना है, लेकिन उन्होंने सोबी यूनिवर्सिटी के आप चांसलर हैं और मयूर बिहार में सर इनका ऑफिस से कभी भी आप जाएंगे बड़े प्यार से सर मिलते हैं और आपकी समस्याओं का हल भी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सुमित जी से आग्रह है कि आए और अपनी बात रखें। या दोस्तों कोई अगर ग्रीन पर काम कर रहा है, खास तौर से एग्रीकल्चर पर काम करके और 200 करोड़ रुपए कंपनी बेगूसराय जैसे शहरों से आकर निकल कर और 300 करोड़ रुपए कंपनी का टारगेट लेकर बढ़ रहे हैं। सुमित महाजन प्लीज। आप लोग मेरी तरफ से बेगूसराय बिहार से ये साल के मुझसे व्यापार कर रहा हूँ और बहुत सारे गाँव से हूँ, ना कोई ज़्यादा एजुकेशन है मेरा, ये एक्सपीरियंस मेरा फर्स्ट नर्वस हूँ। अभी मैं 25 साल का हूँ, 2 साल की 200 करोड़ की कंपनी का टर्नओवर है मेरा। 19 साल का जब मैं था उस टाइम मैंने कंपनी बनाया था। आज कम से कम 100 लोग मेरे कंपनी में काम करते हैं। थैंक यू। सुमित महाजन काम करना जानते हैं और इसीलिए बोलना कम चाह रहे हैं, लेकिन हम जान रहे हैं कि आप जिस प्रकार से काम कर रहे हैं वो अति महत्वपूर्ण है और आपकी यहाँ पर रिपोर्ट आती रहती है। हमारे बीच में आदित्य फैसिलिटी ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर डॉक्टर प्रतिभा शर्मा जी हैं। हम उनसे आग्रह करेंगे कि आप आएँ और अपनी बात रखें। जहाँ कोई महिला होकर और बेहतरीन काम करना, अपनी कंपनी को स्थापित करना आसान नहीं है। अब भले आसान हो गया है, कई कंपनियां आप लोन भी दे रही है, लेकिन आप स्थापित करके आगे बढ़ रही हैं। डॉक्टर प्रतिभा शर्मा जी। Ladies and gentlemen, today, firstly I would like to thank ICCI for this award, which is being awarded today. But gradually it is not only, it is just a collective effort. It is not the individual that is, it's not that I only deserve this award. It is the collaborative effort of our company, the co-workers, the family members, as well as the other co-partner, Mr. Vineet Bhatt. And so this is like a gratitude I want to show in front of you. And it's tremendous efforts we have been through number of years, and through number of years we have been working all together. And it really makes me to find a single word for it. It's not only it's not only one thing that I want to just I want to thank in front of you. That's a thankful wish from our end. We are into IT facility management, and that's a most good news. Okay, thanks. बहुत बहुत शुक्रिया मैम। डॉक्टर प्रतिभा शर्मा, आप डायरेक्टर हैं आदित्य
फैसिलिटीज़ एंड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड के। जहाँ दोस्तों हम खास तौर पर बता दें कि अभी और भी कई गेस्ट हैं जो हमारे बीच में आ रहे हैं, जिसमें संजय भाई नालंदा से आए हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सोशल गुरु हैं और लगातार आप लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जहाँ दोस्तों हम खास तौर पर परविंदर जी से आग्रह करेंगे कि आप आएँ, अपनी बात रखें। जिस तरह से आर्ट पर आप काम करते हैं और लगातार कई कंपनियों में आपने अपने आर्ट से लोगों को प्रभावित किया है। परविंदर कुमार सिंह, आप CEO हैं यूए क्रिएटिव लाइन प्लस के। जी परविंदर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद इस प्लेटफॉर्म के लिए। बेसिकली मेरा जो स्टार्टिंग और अभी तक का जो करियर रहा है वो आर्ट एंड क्रिएटिव फील्ड में शुरू से रहा है। और स्पेशली इसके लिए मैंने न्यूज़ से हमारा ग्रेजुएशन हुआ है ब्रांडिंग एंड एडवर्टाइजिंग के लिए। और इसके साथ साथ मैं अभी बेसिकली मेरा थॉट ये है कि आप किसी भी काम को कर रहे हैं या जैसे भी आप अपने ग्रोन अप हुए हैं तो कहीं ना कहीं आपने जो भी लर्न किया है वो समाज से ही किया हुआ है। और मेरा एक टारगेट ये है कि आप कभी भी सोसाइटी से कोई चीज लर्न लेते हैं, दिस इज द सोशल रिस्पांसिबिलिटी टू रिटेलिएट विद द इंटरेस्ट। क्योंकि आप लोग जो समाज से आपने कुछ सीखा है उसको कहीं ना कहीं आपको एक अच्छे रूप में रिटर्न करना चाहिए, जैसा मुझे लगता है। तो इसी के लिए मैं काम करते करते अपना जो बेसिकली जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है बच्चों लोगों के लिए, और ये चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, दोनों मोड में मैं काम कर रहा हूँ। और हमारे जो कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो यूएस में हैं जो फिजिकल क्लासेस नहीं ले सकते हैं, तो उनके लिए मैंने ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था किया हुआ है। और इंडिया में जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन जिसके पास जैसा सुविधा है उनको मैं दे रहा हूँ। ये हमारा टाइम जो होता है, हमारे पास टाइम कम होने के बावजूद भी मैंने अपने जो संडे का जो ऑफ होता है उसको पूरा का पूरा डेडिकेट किया हुआ है। मुझे लगता है कि जो समाज से आप ले रहे हैं या सीख रहे हैं, कहीं ना आपको स्प्रेड करना चाहिए विद द इंटरेस्ट, ठीक है। और इसी पे मैं काम कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। जी बहुत बहुत शुक्रिया परविंदर जी, आपने आए और अपने खासतौर से अपने आर्ट के बारे में बेहतरीन रूप से आपने बताया कि बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं, बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए और उसमें बताने के लिए बड़ी अच्छी बात है। हमारे बीच में डॉक्टर संजय लाभ हैं और स्टैंड ऑन डेंटल क्लिनिक ऑफ द ईयर अवार्ड आपको मिला है। हम चाहेंगे कि सेंटर फॉर एडवांस इन डेंटल केयर के बारे में लोग बताएं। हमारे यहाँ लोग दांत से लेकर ज़्यादा कह सकते हैं कि वो अवेयर नहीं है। बाद में जब दांत से पूरी तरह से निकालने के लिए जब सुई पड़ता है तो पता लगता है कि शायद बहुत दर्द हो रहा है, बहुत चॉकलेट हमने खाया है। लेकिन आप लोगों को बताते रहते हैं और कॉस्मेटिक का एक बड़ा रूप है। तो हम जब संजय लाभ जी से आग्रह करेंगे कि आप आए और अपने तौर पर और बताएं, बिजनेस के बारे में बताएंगे। जी हाँ, डॉक्टर संजय लाभ। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। लोग कहते थे कि फेस इज अ मिरर ऑफ बॉडी। माउथ इज एक्चुअली द एंट्री पॉइंट ऑफ बॉडी एंड माउथ इज द एग्जिट पॉइंट ऑल्सो टू द वर्ल्ड। आप इस मुंह के द्वारा अच्छी चीजों को अपने शरीर के अंदर लेते हैं और आज के समय में कुछ बुरी चीज भी मुंह से ही लेते हैं। तो मुंह ही सब कुछ है। और अगर हम अच्छी बातें करते हैं तो अपने मुंह के द्वारा, अपने जीभ के द्वारा हम लोगों को अच्छी बात अगर कहते हैं तो अच्छी बातों का हम प्रचार करते हैं और अच्छी बातों को पब्लिसाइज करते हैं, अच्छी बातों को लोगों तक पहुंचाते हैं। तो इस तरह ये भी एक सेवा ही है। दांत का इम्पोर्टेंस पहले बहुत कम था, लेकिन आदमी को जिंदा रहने के लिए खाना खाने, गुरु जी का आहार करना, शुद्ध आहार, उत्तम आहार। और ये उत्तम आहार अगर शरीर में तभी पहुंचेगा जब हमारे दांत स्वस्थ होंगे और हमारे माउथ बैक्टीरिया फ्री, कीटाणु मुक्त होंगे, जो कि उत्तम आहार शरीर के अंदर जाए
उसको अच्छे तरह से पाचन होने के लिए पहले उसका डिग्रेडेशन होना थोड़ा जरूरी है, उसको टुकड़े टुकड़े में तोड़ना जरूरी है। उसके लिए आपकी आपकी लाल ग्रंथि, आपका टंग, आपके मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन, चबाने वाले जबड़ा दांत सब अच्छा होना चाहिए। आदमी स्वस्थ रह सकता है अगर वो चाहे अपने डायबिटीज पर कंट्रोल करे, उसको पहले दांत को ठीक करना पड़ेगा। कोई भी आदमी डायबिटीज कंट्रोल में नहीं हो रहा है तो उसके इतने तरह की गंदगी शरीर में जा रहे हैं या शुगर का प्रोडक्शन माउथ में ही इतना ज्यादा हो रहा है तो वो पूरे बॉडी में उसका कंट्रोल नहीं हो सकता। किसी भी डिजीज का कंट्रोल, लिवर डिजीज हो या कहीं भी इंफेक्शन मुंह से जाती है, हार्ट में इंफेक्शन मुंह से जा सकती है। प्रेग्नेंट लेडी अगर स्मोक करती है तो बच्चे को हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है। प्रेग्नेंट लेडी अगर शराब लेती हैं तो उससे प्रॉब्लम उसके बच्चे को हो सकता है। सब कुछ मुंह से ही है और इन सब चीजों को बहुत अर्ली आइडेंटिफिकेशन किया जा सकता है। डॉक्टर साहब जो गेस्ट थे जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री, उन्होंने भी कहा कि प्रिवेंशन, और आप सभी जानते हैं कि प्रिवेंशन हर एक बीमारी को अगर हम पहले बचा ले तो बहुत अच्छी चीज है। आज के समय में हम ऐसे समय में हैं, ऐसे युग में हैं कि किसी भी डिजीज को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, खास करके प्रीनेटल डिजीज को मदर के उम्र में हम वही डिटेक्ट कर, वही ट्रीट भी कर सकते हैं जीन थेरापी से, हार्मोनल थेरापी से। और डेंटिस्ट्री में इतनी प्रोग्रेस हुई जैसे कि हमारा देश 10 साल में जिस गति से बढ़ा है पिछले 70-60 साल में नहीं बढ़ा, ऐसे ही मेडिकल फील्ड तो बहुत प्रोग्रेस था ऑलरेडी, बट डेंटिस्ट्री उतनी प्रोग्रेस में नहीं थी। और पिछले 10 साल में डेंटिस्ट्री में इतनी प्रोग्रेस हुई, खासकर इंडिया में इतनी प्रोग्रेस हुई है, वी आर एट पार टू द वर्ल्ड। और मुझे बहुत खुशी है यह कहते हुए कि मैं एक इंडिविजुअल डेंटल सर्जन होते हुए एक ऑर्थोडोंटिस्ट हूँ। मैं इंडियन ऑर्थोडोंटिक सोसाइटी का नेशनल जनरल सेक्रेटरी भी हूँ और इस देश में एक वर्ल्ड क्लास डेंटल हॉस्पिटल इंदिरापुरम में हमने किया हुआ है, जो कि किसी भी देश के सबसे बड़े जो संस्थान है, अस्पताल है, आप उस एम्स को ले लें या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल को ले लें, फोर्टिस हो गया, कोई भी हो, किसी का भी डेंटिस्ट्री हमारे डेंटल सेक्टर से अधिक उन्नत नहीं है। तो इसमें कोई हमारा बिजनेस सेंस सिर्फ नहीं था, एक पैशन था कि मैं बाहर से इंग्लैंड से जो आया इंडिया में, मैं चाहे तो मैं यहाँ पे वही करूँ जो मैं वहाँ करता था। और दूसरे मेरे पास आज भी फुल टाइम प्रैक्टिसिंग लाइसेंस है यूके का, बट मैं यूके में नहीं प्रैक्टिस करके इंडिया में प्रैक्टिस करता हूँ पिछले 20 साल से। तो मुझे लगता है अपने लोगों को अपनी सेवा दूँ वो ज्यादा अच्छी बात है, मैं दूसरे को क्यों अपनी सेवा दूँ। तो इसलिए और ऐसे बहुत लोग हैं जो कि बाहर से आ रहे हैं, क्योंकि यूके यूएस सबका मेडिकल फील्ड इंडियन डॉक्टर ही चलाते हैं, इंडियन डॉक्टर ही है जो कि उनके हेल्थ सर्विसेज को चलाते हैं। तो अगर हम अपने देश में अपनी सेवा दें और देश जिस तरह से अपॉर्चुनिटी हमें दे रही है अभी मुझसे पहले महाशय ने कहा कि इन्होंने यहाँ पे कि अपने देश को सोसाइटी में हमें वापस देना चाहिए। अब जो भी है सोसाइटी की वजह से है, समाज की वजह से, इस धरती की वजह से है, और हमें अपनी धरती माँ को जो भी दे सकते हैं। मेडिकल एजुकेशन हो, मेडिकल एजुकेशन में बहुत सारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हैं, बट स्टिल गवर्नमेंट एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशंस आज भी बहुत ही अच्छे हैं। प्राइवेट का रोल बहुत ज्यादा इसीलिए नहीं हो पाता क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर पाना मेडिकल एंड डेंटल एजुकेशन में प्राइवेट के लिए बहुत उनको इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा करना पड़ता है। स्टिल प्राइवेट एजुकेशन भी हैं, बहुत अच्छे हैं, वो भी अच्छे काम कर रहे हैं अभी। तो मैं सबको यही कहूँगा कि आप रेगुलर चेकअप कराएं, हर 6 महीने में एक बार दिखाएं सिर्फ, जिससे कि आप किसी भी बीमारी से बच सकते हैं, वो माउथ हो या बॉडी हो, कुछ भी हो। किसी प्रकार का ब्लड टेस्ट करने से कुछ नहीं होगा। सभी लोग एक करते हैं हेल्थ पैकेज ले लेते हैं, हेल्थ पैकेज लेकर खुद से रिपोर्ट देखते हैं। आप यू आर नॉट एंटाइटल्ड और यू आर नॉट एलिजिबल, यू आर नॉट वाइज इनफ टू इंटरप्रेट द रिपोर्ट। रिपोर्ट से कुछ नहीं होता। आप सिर्फ फिजिकल चेकअप कराएं डॉक्टर से जाकर के, डेंटिस्ट से जाकर के, 6 महीने में आप किसी भी बीमारी से बच सकते हैं। हर प्रकार के धूम्रपान, खैनी, तंबाकू, दुनिया में सबसे ज्यादा अगर मुंह का कैंसर कहीं होता है तो इंडिया में होता है। ये बहुत बुरी बात है, बहुत गंदी बात है कि हम नंबर 1 किसमें, वर्ल्ड में नंबर 1 है ओरल कैंसर में। वो क्यों होता है? क्योंकि हम तंबाकू खाते हैं, हम गुटखा खाते हैं, हम पान खाते हैं, हम सुपारी खाते हैं। पान हमारे कल्चर में है कि सेवा के भाव में हम पान देते हैं। रजनीगंधा का प्रचार तो ऐसे किया जाता है जैसे कि रजनीगंधा खाना एक बहुत बड़े शान की बात हो गई। तो इस गुटखा और पान मसाले से इतना कैंसर होता है और देश में बर्डन बढ़ता है, हेल्थ केयर में बर्डन बढ़ता है। हम अवॉइड कर सकते हैं, कुछ भी नहीं। स्मोक, लंग कैंसर भी इंडिया में बहुत जाते हैं। शराब पीने से लिवर का कैंसर, मुंह का कैंसर, सब तरह के कैंसर होते हैं। तो इनको अवॉइड करना चाहिए, बिल्कुल कर सकते हैं। और मुंह में किसी प्रकार का छाला हो जाए, उजले रंग का कोई धब्बा हो जाए, लाल रंग का कोई धब्बा हो जाए, काले रंग का कोई धब्बा हो जाए, कोई गांठ हो जाए, आसानी से तुरंत आप किसी डेंटल सर्जन के पास जाइए, उनसे चेकअप कराइए, छुपाइए नहीं, शर्माइए नहीं।
और इसका इलाज भी स्टेज 1 स्टेज 2 में बहुत अच्छे तरीके से संभव। हम लोग ओरल कैंसर अब बहुत अच्छे तरीके से इलाज कर पाते हैं। सिर्फ एक ही रास्ता है प्रिवेंशन। और प्रिवेंशन तभी हो सकता है जब उसका आइडेंटिफिकेशन हो जाए। आइडेंटिफिकेशन आप जब चेकअप कराएंगे तभी होगा, अपने आप नहीं हो सकता है। तो बस ये करें, दिन में 2 बार दांत को साफ करें, जब भी खाना खाएं उंगली से दांतों को साफ करें। आपके दांत में कोई कैविटी नहीं होगी, कोई कीड़ा नहीं लगेगा, कोई शरण नहीं होगा। और कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए टेढ़े मेढ़े दांतों को जरूर सीधा करवाएं, ठीक करवाएं बच्चों को, इससे उनके परफॉर्मेंस पे भी असर पड़ता है। एंड किसी भी प्रकार की मदद के लिए पर्सनली मैं हमेशा सेवा देने के लिए तत्पर हूँ, तैयार हूँ। पूरे देश में इतने डेंटल सर्जन है, वो भी हर जगह हैं। तो और खासकर माननीय जी का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम किया। ही हैज ब्रॉट अ मिक्सअप ऑफ इंडस्ट्री, एकेडमिया, एवरीथिंग टुगेदर। मुझे भी इन्वाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। जी बहुत बहुत शुक्रिया संजय लाल जी, जिस तरह से आपने बताया है और मोटिवेट किया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सेंटर फॉर एडवांस डेंटल केयर खास तौर पर हमारा सहयोग रहा है। इन्हें स्टैंड लॉन्ग डेंटल क्लिनिक ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 कंट्रीब्यूशन टू डेंटल केयर स्किल एंड रिसर्च अवार्ड भी दिया है ICCI ने। या दोस्तों हमारा ये खास तौर से सत्र आप यहीं पर समाप्त हो, लेकिन हम डॉक्टर कैलाश बिहारी जी से आग्रह करेंगे कि आप आएँ और धन्यवाद ज्ञापन करें इस खास सत्र को खत्म करने के लिए। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि हमारे बीच में BCCM के मेजर आरती तिवारी जी भी आए हुए हैं। अभी दूसरे सीजन में हम आपको बुलाएंगे। डायरेक्टर हैं एडमिनिस्ट्रेशन जो BCCM के बारे में खास तौर पर अवार्ड भी दिया गया है। जी हाँ, कैलाश बिहारी सर से आग्रह है कि आप आएँ और धन्यवाद ज्ञापन करें इस खास सेशन के लिए। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि डॉक्टर कैलाश बिहारी जी 40 वर्षों के कोऑपरेटिव में खासतौर से कई जगह कॉर्पोरेट में काम किया है और अभी भी लगातार एक्टिव हैं और हमारे इस कार्यक्रम में विशेष रूप से अपने समय निकाला है। आप ICCI के प्रेसिडेंट भी हैं और लगातार कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर कैलाश बिहारी सर। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय जी। हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर राजभूषण चौधरी जी, मंत्री जी, वैसे अपना योगदान देकर के चले गए, फिर भी मेरी तरफ से उनको नमस्कार है। और मंच पर उपस्थित डॉक्टर अजय कुमार, डॉक्टर तपन कुमार नायक जी, डॉक्टर MK वाजपेयी जी, मिस्टर गोविंद दत्त दासा जी, मिस्टर कुंवर शेखर विजेंद्र जी, मिस्टर अर्पित चक्रा जी, इन सबको मेरा प्रणाम है। आप सब लोगों का बहुत बहुत अभिवादन है। आप लोगों ने बड़ा बहुमूल्य समय दे करके आप निकाला। मैं सिर्फ 2 शब्द ICCI के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि है क्या। आज से सैकड़ों वर्ष पहले गांव में बनियान ट्री हुआ करता था, बट वृक्ष कहते थे। उसके नीचे पूरा गांव इकट्ठा होता था। जब कोई समस्या आए, जब कोई विकास का कार्य हो या किसी भी तरह के समारोह के लिए सब लोग वहाँ इकट्ठा हुआ करते थे और वहाँ पे गांव के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए सब लोग अपने अपने विचारों का आदान प्रदान किया करते थे। आज के दिन में सामाजिकता काफी बढ़ गई है, व्यवस्था बढ़ गई है, शहरीकरण हो गया है, तो हम लोगों के पास में ऐसे फोरम्स नहीं है। तो ICCI एक ऐसे फोरम के रूप में समाज को अपना योगदान देने की कोशिश कर रहा है। इसकी तुलना आप जो इस तरह के कंक्लेव होते हैं, बहुत सारे कंक्लेव होते हैं, उनसे आप कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने कोशिश ये की है कि शिक्षा और शिक्षा को दूर करने के लिए जो भी काम हो सकते हैं, बेरोजगारी के दूर करने के लिए जो भी काम हो सकते हैं, इन सब के ऊपर में चर्चा हो और कुछ ऐसी बातें हम लोग आगे समाज के सामने रख सके। इसमें खासतौर से जो मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे पास क्या है, हमारे देश के पास क्या है। एक है इच्छा शक्ति।
140 करोड़ लोगों की इच्छा शक्ति है। ये इच्छा शक्ति बहुत जरूरी है। दुनिया में गिने चुने देश ऐसे हैं जिनके पास अपार जनसंख्या है, और हमारे पास जो अपार जनसंख्या है, मैं आपको निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि उस जनसंख्या में अधिकांश लोगों की इच्छा शक्ति बहुत स्ट्रॉन्ग है। और बड़ी खुशी की बात है कि हमारा नेतृत्व भी इस बात की पुष्टि करता है, और नेतृत्व इस बात को जगाता है, हमारी इच्छा शक्ति। फिर हमारे पास में है जनशक्ति। 140 करोड़ लोगों की जनशक्ति हमारे पास में है। शिक्षा शक्ति है। पूरे विश्व में भारत हमेशा विश्व गुरु रहा है। यहाँ के गुरुकुल, यहाँ की शिक्षा पद्धति, सबने आज का विज्ञान हो या शास्त्र हो या सामाजिकता हो, वसुधैव कुटुंबकम की भावना से हमारा जो योगदान है पूरे विश्व को हमेशा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर शक्ति, हमारे पास में हजारों एकड़ जमीनें हैं। खाद्यान्न का उत्पादन है, खदान है जहाँ से मिनरल्स हम निकाल सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अभी आप लोगों ने हाल फिलहाल में सुना होगा कि दो चीजों पर बहुत ज्यादा काम हो रहा है। एक है सेमीकंडक्टर के ऊपर में, दूसरा बैटरीज के ऊपर में। और इसकी जो भी इसके लिए जरूरी चीजें हैं सब अपने देश में उपलब्ध हैं। धन शक्ति की भी हमारी जरूरत है, और बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारा देश 5वीं बड़ी आर्थिक शक्ति है। इन सबको जोड़ना है, और जोड़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म हम लोगों को मुहैया कराना है जिसपे हम लोग डिस्कस कर सकें। और जो आज की चर्चा हुई है, पहले सेशन की वो चर्चा उसी रूप में हुई है। लोगों ने अपना योगदान दिया है, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। उन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, और आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ये जो प्रथम सेशन था, इसके समापन के लिए मैं आप लोगों से फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और हम ये सेशन खत्म कर रहे, लेकिन अल्लाह टोकन हम आपको जैसे सर पर देंगे, तो हम आगे करेंगे। सत्यम हमारे दोस्त यहाँ पर हैं, और अब हमारा इवेंट आ चुका है, रास्ते में था लेकिन आ गया है, तो आपको हम अल्लाह टोकन सारे गेस्टों को देने के लिए सुधीर जी परमिट कर दिया अगर हो तो आ जाएं, आए खास तौर पर हमारे गेस्टों को अल्लाह टोकन जी। जाओ। अरे यार ये क्या है, इससे बोल के वो नहीं है अभी, तो बोल दिया। या दोस्तों, हमारा ये पहला सत्र है जिसमें हमने खास तौर पर इस सत्र को अब यहीं पर समापन कर रहे हैं, क्योंकि दूसरा सत्र कभी हम शुरू करेंगे जिसमें कई गेस्ट हमारे बीच में आए हुए हैं, और उन सबको हम मंच पर बुलाएंगे। तो हम आग्रह करेंगे दीपक जी से। दीपक सर आप आए, आप लोग प्लीज। या दोस्तों, दीपक सर भी बाहर थे, लेकिन इन्होंने समय निकाला है हमारे बीच में इस कार्यक्रम में आए हैं। डॉक्टर अजय कुमार सर से भी आग्रह है, आप हमारे खास तौर से वेलकम स्पीच के लिए हमने आपको बुलाया था, आपने बेहतरीन रूप से स्वागत किया सर का, और हम यही चाहते हैं कि आप ऐसे सहयोग बनाते रहें। जी हाँ, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए डॉक्टर अजय कुमार जी का। या हमारे बीच में गोविंद सरदार जी हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे बीच में आए हैं। आप मेंबर हैं नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल द अक्षय भारत फाउंडेशन में। यहाँ हम आपको बता देंगे, आप जब जाएंगे अक्षय भारत फाउंडेशन में, आप इस प्रकार से निःशुल्क भोजन बच्चों को दिया जाता है, ये अति महत्वपूर्ण है। यहाँ हमारे बीच में डॉक्टर तपन कुमार नायक सर हैं, आप भी जयपुरिया स्कूल ऑफ बिजनेस से हैं, और सबसे हमसे आग्रह है कि आज का सेशन में और भी रहेंगे, हमारा सेशन और भी चलेगा, जिसमें आप ये विचार हम जानना चाहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया है हमारी ओर से। जी हाँ, हमारे साथ खास तौर से जीएस साहब भी हैं,
आपसे भी आग्रह है कि सर आप लगभग टोकन दें हमारी ओर से एक छोटी सी भेंट है आपके लिए, आपने जो समय निकाला है और वही हम चाहते हैं कि आप ऐसे अपने यहाँ पर हमारे खास तौर से अपने सहयोग बनाए रखें। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और रवि चौहान जी, हम आपको जाने नहीं देंगे, आपका भी हम लगभग टोकन करेंगे और हम चाहते हैं कि उनका लगभग टोकन दीजिए। रवि चौहान जी का सहयोग हम भूल नहीं सकते। हम पहली बार मिले थे मंत्री जी यहाँ से और उन्होंने मंत्री जी को आग्रह किया, मंत्री जी भी 1 मिनट नहीं लगाए और उन्होंने ओके किया कि मैं तुरंत आपके कार्यक्रम में आऊँगा। और खासतौर से उन्होंने कहा है कि अगले कार्यक्रम जब आप करेंगे डॉक्टर्स का, उसमें भी मैं आने वाला हूँ यहाँ। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हम बस 1 मिनट की ब्रेक में के बाद दूसरे सत्र हम शुरू करने वाले हैं इंडस्ट्री एकेडमिया इंटरफेस का। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई कट कर भाई कर दो, लाइव कट कर दो। वो चलाना चलने। अरे हटाओ भाई, लाइव कट करो, क्या दिखाओगे, खाली फ्रेम दिखाओगे।